ملکہ برطانیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری۔ میلوں لمبی قطار میں کھڑے لوگ چہروں پر اطمینان اور عقیدت کے ملے جلے جذبات لیے گھنٹوں انتظار کے بعد ملکہ کے تابوت کے سامنے جا کر تعظیماً جھکتے ہیں اور ملکہ کو آخری بار گڈ بائے کہہ کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ لمبی قطار میں کھڑے لوگوں کے ساتھ اس وقت لندن کے ویسٹ منسٹر ہال کے باہر بیورو چیف یوکے غلام حسین اوان بھی موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی غلام حسین اوان، بتائیے گا کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت ہم اس کیو کے اندر موجود ہیں جو کہ تقریباً 4.5 مائل لمبی جو ہے وہ کیو ہے ملکہ کے تابوت کا آخری دیدار کرنے کے لیے۔ اس وقت بھی ہم جو ہے وہ ویسٹ منسٹر ہال کے عقب میں موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر جو ہے ملکہ برطانیہ کا تابوت پڑا ہوا ہے۔ لوگ کیو کے اندر ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کب سے کیو کے اندر ہے۔ How long you been in the queue? Been in the queue since 6:30, Okay. covering 8 hours. It's very tiring, but it's very well worth it. We start queue like 6 o'clock in the morning, and still we are in the queue. And it's just a little bit dedication of Queen, she Elizabeth, and just showing the respect to just see them, just give a respect to them. We've been in the queue since 6:30 this morning, so we've come to just pay our last respects to the Queen. She's done a very, very good job, very strong lady, and yeah, I'm glad I'm here today, and it's been worth every moment. Pay our respects to a wonderful lady who served our country for such a long time, and you know, we're all here enjoying the weather and the company, celebrating her life as much as mourning her loss. Well, she's an absolute legend, isn't she, what she's done for us? Although it's a really sad occasion, I think we've just got to be grateful for the years that we've had with her. You know, this is history in the making. We'll never get this moment again. Well, it's worth it. I mean, she's been our queen for so long, and it's just to pay our respects to her and tell her, you know, how much she was loved by everyone. We all respect her, and yeah, it's worth the wait. A few hours is not a problem. She served us for 70 years, so yeah, a few hours for her is nothing for us. Like I say, everything that's gone on, we've been watching it on TV, and just thought we'd be, you know, to be a part of it, and like I said, very, very emotional time. اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں ایسے پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے جہاں پر ریٹرن آف انویسٹمنٹ زیادہ ہو۔ لندن میں معروف پراپرٹی ڈیولپر شعیب ڈھلو نے پریس بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پاکستان میں اس وقت پراپرٹی کے کاروبار میں اچھے مواقع موجود ہیں جن سے انہیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مزید بتائیں کہ بیورو چیف کے غلام حسین اوان اپنی رپورٹ میں۔ پاکستان کے بڑے ہاؤسنگ گروپ نے کھاریاں میں اپنے پروجیکٹ میں اوورسیز بلاک کا اعلان کر دیا۔ پروجیکٹ کی جانب سے کھاریاں اوورسیز مے فیئر بلاک کی لانچنگ کے موقع پر لندن میں پریس بریفنگ۔ معروف پراپرٹی ڈیلر شعیب ڈھلو نے کہا کہ کھاریاں، سرائے عالمگیر اور گجرات کے لوگ بہت بڑی تعداد میں برطانیہ، یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں اور ان کی سہولت کے لیے عالمی معیار کے مطابق اوورسیز بلاک لانچ کیا گیا ہے تاکہ لوگ پاکستان آ کر بہتر سہولتوں سے مستفید ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو سرمایہ کاری کرنے کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جس ادارے پر اعتماد کر رہے ہیں اور ان کا ماضی میں ریکارڈ کیسا ہے۔ شعیب ڈھلو نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ 3 سال کا پیمنٹ پلان رکھا گیا ہے اور اس کے بعد جدید سہولتوں کے ساتھ ڈیولپمنٹ کا کام باقاعدہ شروع کیا جائے گا۔ بعد میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے شرکاء نے پروجیکٹ کے حوالے سے تفصیلی اظہار خیال کیا۔ جی ٹی روڈ کی جو ہماری کمیونٹی ہے وہ اوورسیز پاکستانی اس میں بہت زیادہ ہے، اور ہر بندے کا ایک ایسوسیشن پاکستان کے ساتھ ہے۔ ان کو لوگوں کو، ہمارے کلائنٹس کو یہ بھی پتہ ہے کہ بینیفٹ بھی بڑے اچھے ہیں، اور گھر کے پاس آپ کو لگژری انٹرنیشنل اور یورپ سٹینڈرڈ کی لگژری آپ کو اگر مل رہی ہے اپنے لوکل ایریا کے قریب، تو لوگ ہیپیلی اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں اور اس کے بینیفٹس بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ بہت پوٹینشیل ہے، اور میں نے وزٹ بھی کی ہے خود، جیلم بھی اور کھاریاں بھی، اور اب ہم جو اوورسیز شروع کروانے لگے ہیں، اور اس کا 3 ایئرس پیمنٹ ٹرم پلان ہے، اور اس میں کمرشل بھی ہے اور اس میں ریزیڈینشیل بھی ہے، اور اس کا بھی ڈاؤن پیمنٹ اینڈ 3 ایئرس انسٹالمنٹ۔ تو انشاءاللہ جسے کہتے ہیں وہ ول گیو دم اے ڈیلیوری بینگ آن ٹائم، اور جو بھی انویسٹ کرنا چاہتا ہے از اے بگ اپرچونٹی فار دا پرسن، اور انشاءاللہ ہی ول ارن۔ پریس بریفنگ میں پاکستانی میڈیا کے نمائندگان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف، 92 نیوز، UK۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر پرتھ شائر میں پاکستانی سیلاب زدگان کی امداد کے لیے چیریٹی ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں سیاسی، سماجی، کاروباری افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات کیسر حبیب کی رپورٹ میں۔
जब कभी भी पाकिस्तान पर कोई आजमाइश या कड़ा वक्त आता है तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने हमेशा उनका साथ दिया है। इस बार भी पाकिस्तान में हालिया सैलाब से जो तबाही आई, इससे निमटने के लिए स्कॉटलैंड के शहर पर्थ के मकामी रेस्टोरेंट में फंड रेजिंग चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीट विशॉर्ट ने भी इस कड़े वक्त पर स्कॉटिश गवर्नमेंट की पाकिस्तान के लिए इमदाद को बेहतरीन कदम करार दिया। दीगर मकामी अहम शख्सियात ने भी अपने तासुरात पेश किए और रेस्टोरेंट की सर्विस और माहौल की भी तारीफ की। To be here tonight to support Javed and his team to raise some funds for the devastating disaster in Pakistan. It's been a fantastic night and a great evening, and I hope there's lots of funds raised for the poor people of Pakistan. It's been in need of such a good cause. We get rain here, but it's nothing compared to what you have had to endure across in Pakistan. The food has been excellent and the atmosphere is so friendly, it's unbelievable. Today we are doing a charity event for the floods in Pakistan. We're doing a fundraising dinner. We've decided as a team, as a Manzil team, as our duty to help our brothers and sisters with all this flood. So we're just doing a charity event and inshallah helping all the brothers out in Pakistan, brothers and sisters. Take it upon ourselves to show the world what's happening and to raise money. I think it's everybody wants to do the same thing, but we're just trying to set the trend so all our brothers and sisters can follow. We're here at Manzil Restaurant just with a charitable dinner with the whole community of Perth, coming to raise funds for those in need in Pakistan. The food was delicious, लेकिन हमारा मकसद आने का यही था कि जितना हम कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए हम करेंगे और आगे भी इंशाल्लाह बहुत सारी इवेंट्स ऐसी होंगी और हम बस ये दुआ करते हैं जो अफेक्ट हुए अल्लाह उनको सब्र दे और उनकी तकलीफें और मुश्किलें आसान करे. I'm really pleased to be here in the Manzil Restaurant in Perth for what is a fantastic evening fundraising for the Pakistan flood relief. I mean, what's happened in Pakistan is an absolute tragedy, and I know that so many people who are here this evening have relatives or friends who are caught up in this disaster. So look, I think nights like this are really important. The fundraising effort right across the UK, Europe, worldwide. काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है जिसमें अंग्रेज़ भी हैं और अपने पाकिस्तानी इंडियन और ये सारे लोगों ने काफ़ी हिस्सा लिया है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है और हमारी ये कोशिश है कि हम पाकिस्तान के लिए जिन लोगों के ऊपर ये इस तरह के प्रॉब्लम्स आई हैं फ्लड्स में और मकानों से घर से बेघर हो गए हैं और काफ़ी जो है इस चीज़ का जो है हमें अफसोस है और हमारी ये कोशिश है कि हम इसके बाद और भी प्रोग्राम इस तरह के रखेंगे जिसमें कि चैरिटी को इकट्ठा किया जाएगा और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम खुद वहाँ जाकर ये जितने भी पैसे हैं इनको जो उधर उन लोगों में बांटें जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है वो उनको मुहैया करके दें. रेस्टोरेंट में मकामी कम्युनिटी की शानदार बुफे डिनर से तवाज़ो की गई. कम्युनिटी ने रेस्टोरेंट इंतजामिया के इस नेक इकदाम को सराहा. रेस्टोरेंट मालिकान ने 6000 पाउंड इकट्ठा होने पर तमाम डोनर्स का शुक्रिया अदा किया और मुस्तहिकीन तक एक एक पाई पहुँचाने की यकीन दहानी कराई. आखिर में रैफल टिकट के जरिए मजीद रकम इकट्ठी की गई. कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी, स्कॉटलैंड. टोरंटो में 18 सितंबर को खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम की तैयारियां अरूज पर हैं. रेफरेंडम से कबल दुआया तकरीब में 50,000 से ज़ायद सिख शरीक हुए. इज्तिमाई दुआ अरदास का एहतमाम सिरी गुरु गरनाथ प्रकाश पौरन माल्टन कनाडा में किया गया था. दुआया तकरीब में सुरका पीले रंग के झंडे उठाकर शरीक हुए हैं जिन पर खालिस्तान के नारे दर्ज थे. मज़ीद जानते ब्यूरो चीफ यूके गुलाम सनवान की रिपोर्ट में. टोरंटो में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम से कबल दुआया तकरीब का इनेकाद. 50,000 से जायद सिख शरीक. टोरंटो में 18 सितंबर को खालिस्तान के कयाम के लिए रेफरेंडम होगा. नौजवान समेत तमाम शुरा ने खालिस्तान के कयाम तक जद्दोजहद जारी रखने का अज़म किया. रेफरेंडम का एहतमाम करने वाली तंजीम सिख फॉर जस्टिस की तरफ से दुआया तकरीब के एहतमाम पर इजहार तशक्कुर किया गया. सिख रहनुमा गरप्तोन सिंह पन्नू ने दुआया तकरीब के शुरा से रेफरेंडम की कामयाबी का यकीन दिलाया. लंदन में गुज़िश्ता
برس 31 अक्टूबर से वोटिंग के आगाज के बाद रेफरेंडम की मकबूलियत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। कनाडा के नौजवान सिखों में आजादी की तड़प देखकर खुशी हुई है। 18 सितंबर से कबल ही कैनेडियन सिखों का रद्द अमल मोदी हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब बन गया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते कनाडा के सिखों ने रेफरेंडम की तशहीर के लिए 2000 से जायद गाड़ियों की रैली निकालकर नया रिकॉर्ड कायम किया था। रेफरेंडम में सवाल पूछा जाता है कि क्या भारत पंजाब को आजाद मुल्क बनना चाहिए। भारतीय हुकूमत SFJ को दहशतगर्द तंजीम और खालिस्तान पर रेफरेंडम को गैर सरकारी करार देती है। कनाडा में रेफरेंडम से कबल सरगर्मियां उरूज पर हैं। रैलियां निकालने के अलावा बैनर्स लगा दिए गए हैं और तशहीरी मवाद की तकसीम जारी है। 18 सितंबर के रेफरेंडम को भारतीय फौज के हाथों शहीद हरजिंदर सिंह से मौसूम किया गया है। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज, ब्यूरो चीफ UK। पाकिस्तानी हाई कमीशन मलेशिया की अपील पर गो ग्वांग शान बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिंचियो फाउंडेशन की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए 14 टन वजनी इमदादी सामान पाकिस्तान भिजवाया गया। मज़ीद तफसीलात जावेद रहमान की रिपोर्ट में। कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुनक़दा तकरीब में मलेशिया के मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट दातोसरी डॉक्टर वीकॉक स्विंग ने इमदादी सामान पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच के स्पुर्द किया। इस मौके पर मलेशिया के मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट ने कहा कि मुसीबत और दुख की इस घड़ी में मलेशिया की हुकूमत, अवाम, दोस्त बरादर मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया की दोस्ती दहाइयों पर मुहित है। उन्होंने इस बात का भी इयादा किया कि पाकिस्तानी सैलाब के लिए मलेशिया से मजीद इमदादी सामान भिजवाया जाएगा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच ने मलेशियन हुकूमत, मलेशिया के अवाम और खास तौर पर फू ग्वांग शान ऑर्गेनाइजेशन, बिलिया मलेशिया और सिंचोए फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। जिसके बाद खाने पीने का खुश्क सामान, खुश्क दूध, बच्चों के कंबल, खैमाजात, गर्म कपड़ों और दीगर इमदादी सामान लेकर PIA की परवाज कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई। जावेद रहमान, 92 न्यूज, मलेशिया। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में इदारा अल मुस्तफ़ा के ज़ेर तमाम नमाज जुमा की अदायगी के बाद पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए आगाही सेशन मुनक़िद हुआ, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सैलाब की तबाहकारियों, सैलाब से हलाकतों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सैलाब ज़दगान की मुश्किलात की कमी के लिए ख़ुसूसी दुआया तकरीब का एहतमाम भी किया गया। तफसीलात अकरम बाजवा बताएंगे। वियना में ओवरसीज पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए दिन रात कोशां। नमाज जुमा के बाद उलमाए कराम, कम्युनिटी शख्सियात ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को सैलाब ज़दगान की मदद के लिए तरगीब दिलाई। मजहबी दर्स का इदारतुल मुस्तफ़ा के खतीब प्रोफेसर अजहर अब्बास सियालवी ने नमाज जुमा के बाद हाज़रीन ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जो सैलाब ने तबाही मचाई है उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। हम सबको सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा, क्योंकि सैलाब ने पाकिस्तान में सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है। घर बार, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेत खलियान और फसलें सब कुछ तबाह हो चुकी हैं। मुकर्ररीन ने ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी से सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद करने की अपील की। शुरका का कहना था इदारतुल मुस्तफ़ा सेंटर वियना की इंतजामिया पाकिस्तानी कम्युनिटी के तावन से हजारों यूरो पाकिस्तान भेज चुकी है और इमदाद भेजने का ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। शुरका ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए 92 न्यूज की अपील और मुस्बत किरदार को बेहद सराहा। पानी की वजह से जो बीमारियां पैदा होंगी उसमें उनके साथ ताउन करना, और सबसे अहम इशू जो मैं गुजारिश करूंगा, आज भी हमने यहाँ इदारतुल मुस्तफ़ा में दुआ भी की और ये बात रखी है, हमारी बहुत सी माएँ बहनें बेटियाँ ऐसी हैं जो हामला हैं, बच्चों की पैदाइश होनी है, उनके लिए खुसूसी तौर पर हमने यहाँ भी रिक्वेस्ट की है और आपके टेलीविज़न चैनल के ज़रिए से पाकिस्तान में भी पैगाम पहुँचाते हैं कि अपनी उन माओ बहनों बेटियों के लिए अलग से कोशिश भी होनी चाहिए और चंदा भी बनाया जाना चाहिए। आखिर में प्रोफेसर अजहर अब्बास सियालवी ने इज्तिमाई दुआई अकलमात में कहा कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की मुश्किलात में कमी फरमाए और सैलाब ज़दगान की गैबी मदद फरमाए। इस मौका पर पाकिस्तान की सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गयी। अकरम बाजवा, 92 न्यूज, वियना। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में फ्लावर मिल्स की टेक्नोलॉजी के हवाले से आलमी नुमाइश हुई है, जिसमें दुनिया भर से फ्लावर मिल्स मशीनरी बनाने वाले 100 से ज़ायद कंपनियों और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की है। तुर्क फ्लावर मिल्स कंपनियों की तैयार करदा मशीनरी और टेक्नोलॉजी को दुनिया भर से आटे के कारोबारी हजरात निहायत पसंद करते हैं। तफसीलात आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में।
इस्तांबुल के इलाके यस्रिकोई में फ्लोर मिल्स मशीनरी के हवाले से दुनिया की बड़ी नुमाइश। 100 से ज्यादा आलमी कंपनियां अपनी मसनूआत के साथ नुमाइश में शरीक हैं। मिलटेक 2022 के नाम से होने वाली नुमाइश में फ्लोर मिल्स की टेक्नोलॉजी तैयार करने वाली तुर्क कंपनियों की मसनूआत भी मौजूद हैं। नुमाइश में दाल बनाने से लेकर आटा तैयार करने वाली जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी को रखा गया है, जिन्हें बेहद पसंद किया जा रहा है। 92 न्यूज से बातचीत करते हुए तुर्क कंपनियों के नुमाइंदों का कहना था कि तुर्क फ्लोर मिल टेक्नोलॉजी के रेट कम लेकिन म्यार यूरोपीय सतह का है। यही वजह है कि यूरोप और दुनिया के दीगर ममालिक से आने वाले कारोबारी हजरात तुर्क मशीनरी में खसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। 92 न्यूज से बातचीत करते हुए तुर्क कंपनियों के नुमाइंदों का मजीद कहना था कि आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान समेत कई ममालिक में अपनी टेक्नोलॉजी मुतारफ कराने का इरादा रखते हैं। उनका कहना था कि बरादर मुल्क पाकिस्तान में तुर्क कंपनी किस्तों पर नई मशीनरी पाकिस्तानी मार्केट में मुतारफ कराएगी। We have new machinery and we have good prices for Pakistanian. We will participate in next exhibition so they can visit us and they can show our machine and the prices. शुरा ने इस मौके पर पाक तुर्क दोस्ती और सकाफती ताल्लुकात के फरोग में 92 न्यूज के किरदार को भी सराहा। इस्तांबुल मिलीटेक 2022 फुआर मरकज में एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया भर से कारोबारी हजरात ने शिरकत की। 100 से ज़ायद कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया। तुर्किश कंपनियां जो यहाँ फ्लोर मिल के पार्ट्स मशीनरी वगैरह सेल करती हैं, उन्होंने आइंदा अपने लाम अमल का ऐलान करते हुए बोला कि हम पाकिस्तान भी जाएंगे। पाकिस्तानी लोग यूज मशीनरी खरीदते हैं, हम उनको नई मशीनरी सस्ते रेटों में देंगे। आतिफ भाई, 92 न्यूज़ तुर्की। पाक सऊदी दोस्ती को उजागर करने के लिए सऊदी कौमी दिन की मुनासिबत से पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा की जानिब से आर्ट एंड कल्चर नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और सऊदी आर्टिस्टों ने अपने फन पारों के जरिए पाक सऊदी कल्चर को उजागर किया और इस मौके पर दोनों बरादर ममालिक का फोक म्यूजिक भी पेश किया गया। तकरीब का अहवाल जानते हैं अदील रियाज की रिपोर्ट में। नुमाइश का इफ्तिताह कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद और डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर जनरल मोहम्मद सबिया ने किया। नुमाइश में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और सऊदी कम्युनिटी के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार भी शरीक हुए। आर्टिस्टों के फन और फोक म्यूजिक से खूब महसूस हुए। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस पर शुरका ने भरपूर दाद दी। नुमाइश में दोनों ममालिक की फोक मौसीकी की तनों ने भी शुरका को खूब महसूस किया। पाकिस्तानी बांसुरी और ढोलक ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब से खिताब करते हुए कौंसल जनरल जद्दा खालिद मजीद ने सऊदी भाइयों को उनके कौमी दिन की मुबारकबाद दी और आर्टिस्टों के फन और फोक म्यूजिक को सराहा और पाक सऊदी दोस्ती पर इज़हार ख्याल करते हुए सऊदी फरमारवाज शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। सफीर पाकिस्तान का कहना था, पाकिस्तान में हमेशा मुश्किल वक्त में सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान का साथ दिया। तकरीब में जनरल मोहम्मद सबिया ने अपने खिताब में भी पाक सऊदी दोस्ती की तारीफ की और पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा की जानिब से सऊदी भाइयों से इज़हार मोहब्बत के लिए कौमी दिन मनाने पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब में दोनों ममालिक की सकाफत पर मबनी फनपारे शुरका की खूब तवज्जो का मरकज बने रहे। खास तौर पर सऊदी आर्टिस्ट अब्दुल कादर दरवेशन की तैयार की हुई सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, जबकि पाकिस्तान आर्टिस्ट सुल्तान की बनाई हुई वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर खूब तवज्जो का मरकज रही। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा। यूरोप का सबसे बड़ा कबड्डी मेला स्पेन के शहर वालेंसिया में हुआ है, जिसमें यूरोप भर से टीमों ने शिरकत की है। पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब की कबड्डी के खिलाड़ियों ने अपने शानदार खेल से शायकीन के दिल मोह लिए। सुरखा ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को दिल खोल कर दाद दी। इस मौके पर पंजाबी सकाफती रंगों का माहौल भी देखने को मिला। देखते हैं नुमाइंदे 92 न्यूज़ शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। स्पेन के शहर वलेंसिया में कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद। यूरोप बाहर से टीमें शरीक हुई। पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब के कबड्डी के खिलाड़ियों के दरमियान जोरदार टाकरा। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने खूबसूरत खेल पर खूब दाद वसूल की। ढोल की थाप पर मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब की फैमिलीज ने दिलचस्पी के साथ टूर्नामेंट को देखा। इस मौके पर सिख कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में शरीक थी। यूरोप कबड्डी टूर्नामेंट को वीर खालसा ग्रुप, वलेंसिया, गुरपिंदर सिंह, महल साहब तोंग, धर्मिंदर सिंह मलई, जबकि पाकिस्तान स्पेन वलेंसिया एसोसिएशन और दीगर शख्सियात और तंजीमों ने स्पॉन्सर किया। जबकि मुंतजमीन में मिर्जा अलाउद्दीन मुगल, मजर मकसूद गोंदल, अरशाद वड़ाइच, चौधरी फजल हुसैन वड़ाइच और दीगर शख्सियात शामिल थी। आल यूरोप
कबड्डी टूर्नामेंट में फ्रांस, बेल्जियम, इटली, हॉलैंड, स्पेन, यूरोप भर की टीमों ने हिस्सा लिया। कबड्डी मेले में पाकिस्तान, इंडिया की टीमों के दरमियान भरपूर मैच देखने को मिला। फाइनल मैच फ्रांस और बेल्जियम के दरमियान हुआ, जिसमें बेल्जियम की कबड्डी की टीम ने फतह अपने नाम की। फातिह टीम को 2500 यूरो नकद इनाम और यादगार ट्रॉफी भी पेश की गई। इसके अलावा शानदार खेल पेश करने वाले दीगर खिलाड़ियों को नगद इनामात और गोल्ड मेडल से नवाजा गया। कबड्डी टूर्नामेंट के साथ शायकीन की तफरीह के लिए भी शानदार इंतजाम किया गया था। बिरयानी, गोलगप्पे और दीगर देसी खानों से शायकीन ने खूब लुत्फ उठाया। मकामी बल्दिया के मेयर समेत स्पेनिश अथॉरिटी ने भी टूर्नामेंट में खसूसी शिरकत की और पाकिस्तानी सकाफती रंगों को खूब इंजॉय किया। कबड्डी टूर्नामेंट के मुंतजमीन और शुरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कबड्डी टूर्नामेंट के हवाले से कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। हम सब जितने भी पाकिस्तानी इंडियन भाई सब एंजॉय कर रहे हैं। इन सब दोस्तों का शुक्रिया जो दूसरे मुल्कों से इधर तशरीफ लाए हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा वा कि साडे इस वलेंसिया विच पहला कबड्डी कप आ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। दोस्त जो आए हुए हैं बाहर से सारे दिल ਦੇ ਥਾ ਗਰਾਈਆਂ ਸੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਤੇ हैं। ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਤਰਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ये पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी ने मिलकर इस प्रोग्राम को मुनज़्ज़म किया है, जिसमें हमने अलकालदे बुरखा सऊद को और मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ को और तमाम मीडिया के अरकान को और दो सिंगर जो इंग्लैंड और कनाडा से आए हैं, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इसको प्रोग्राम को मैनेज किया है। टूर्नामेंट के आखिर में पंजाबी म्यूजिकल शो ने टूर्नामेंट की रौनक को चार चांद लगा दिए, जिसमें यूके से आए पंजाबी सिंगर्स ने खूबसूरत गीत पेश करके समा बांध दिया। इस मौके पर मंचलों ने भंगड़े डालकर अपने जज्बात का वालहाना इजहार किया। कबड्डी मेले में कुरंदाजी में 6 अदद बड़ी LCDs और मोबाइल फोन भी शुरा को बतौर तोहफा पेश किए गए। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, स्पेन।